اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہوگے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. آپ نے دیہاتوں، شہروں، بازاروں، گلی کوچوں میں دلوں کا حال بتانے والے نجومی تو ضرور دیکھے ہوں گے. کوئی آپ کو ماضی، حال، مستقبل کی خبر دے رہا ہے تو کوئی روٹھے محبوب کو قدموں میں ڈھیر کر رہا ہے. کوئی آپ کو ملک سے باہر بھیجنے کی خوشخبری سنا رہا ہے اور کوئی من پسند شادی کا مشتہ سنا رہا ہے. کوئی آپ کو راتوں رات دولت مند بننے کے خواب دکھا رہا ہے اور کوئی جادو، تعویذ، بیماری اور جنوں بھوتوں کی ہولناک خبر سنا رہا ہے. کوئی آپ کے دل میں چھپے راز اگل کر حیران و پریشان کر رہا ہے اور کوئی دشمن کو سبق سکھانے کی ترکیبیں بتا رہا ہے. غرض ان دلوں کا حال بتانے والے نجومیوں، عالموں اور پیروں فقیروں نے معصوم لوگوں کو بے وقوف بنا رکھا ہے. بندہ پوچھے کہ وہ جو دوسروں کو رات دن دولت مند بننے اور ملک سے باہر بھیجنے کے وظیفے اور ترکیبیں بتا رہے ہیں، خود سارا دن سڑکوں پر بیٹھے جھک کیوں مار رہے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ دلوں کا حال سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا. خدا کے زندہ الہامی کلام میں لکھا ہے کہ داؤد نبی کے بیٹے سلیمان نبی نے آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے اور اسرائیل کی ساری جماعت کو برکت دیتے ہوئے کہا، اے خداوند اسرائیل کے خدا، تیری مانند نہ تو اوپر آسمان میں نہ نیچے زمین پر کوئی خدا ہے. تو اپنے ان بندوں کے لیے جو تیرے حضور اپنے سارے دل سے چلتے ہیں عہد اور رحمت کو نگاہ رکھتا ہے. تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن کر معاف کر دینا اور ایسا کرنا کہ ہر آدمی کو جس کے دل کو تو جانتا ہے اس کی ساری روش کے مطابق بدلہ دینا، کیونکہ فقط تو ہی سب بنی آدم کے دلوں کو جانتا ہے. خدا کا نیک و پیارا بندہ داؤد نبی کہتا ہے، کاش کہ شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے، پر صادق کو تو قیام بخش، کیونکہ خدائے صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے. بائبل مقدس میں ایک اور مقام پر داؤد نبی کہتا ہے، اگر ہم اپنے خدا کے نام کو بھولے یا ہم نے کسی اجنبی معبود کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں تو کیا خدا اسے دریافت نہ کر لے گا، کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے. اور پھر کہتا ہے، اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا. تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے. تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے. تو میرے راستے کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے. دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو. اور سلیمان نبی الہی حکمت سے معمور ہو کر فرماتا ہے، انسان کی ہر ایک روش اس کی نظر میں راست ہے، پر خداوند دلوں کو جانچتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب کوئی کاریگر مشین بناتا ہے تو وہ اس کے ایک ایک پرزے کو جانتا پہچانتا ہے، اور جب اس میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو وہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کو دور کیسے کرنا ہے. اسی طرح خدا ہمارا تخلیقار ہے. اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. وہ ہمیں اندر باہر سے جانتا پہچانتا ہے. ہم انسان تو صرف چہرے دیکھتے ہیں مگر خدا دلوں کو دیکھتا ہے. خدا نے جب سیموئیل نبی کو
यस्सी के पास भेजा कि उसके 7 बेटों में से एक को इस्राएल का बादशाह होने के लिए चुने, तो उसका ध्यान यस्सी के बेटों की मर्दाना वजाहत, चेहरे की खूबसूरती, रंग रूप और कद काट पर था। जब यस्सी के बेटे एलीआब को देखा तो सोचा यही होगा, मगर खुदा ने उससे कहा, तू उसके चेहरे और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। अब सवाल यह है कि क्या वजह है कि खुदा की नजर इंसान के दिल पर होती है? इसलिए कि हर बुरा ख्याल और बुरी रविश का मंसूबा दिल में पैदा होता है। दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और ला इलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? अगर दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और ला इलाज है तो जाहिर है कि इंसान खुद से इसको पाक साफ नहीं कर सकता कि बुरे ख्याल जन्म न ले। मतलब ये हुआ कि दिल के ला इलाज मरज का इलाज हम इंसान किसी सूरत नहीं कर सकते। यह हमारे बस की बात ही नहीं। हमारा खुदावंद तख्लीकार यह हकीकत खूब जानता था कि हम खा कुछ भी कर लें, अपने दिल को बुराई से पाक नहीं कर सकते। इसलिए खुदा अपना आसमानी जलाल छोड़कर अपने बेटे यीशु मसीह की सूरत खुद दुनिया में आया, ताकि हमारे दिलों को अपने खून से पाक और मुकद्दस करे। और जिस तरह खुदा हमारे दिलों को जानता है कि इसके अंदर से बुरे ख्याल ही जन्म लेते हैं, वैसे ही उसका बेटा मसीह यीशु भी जानता है कि हमारा दिल ही है जिसमें बुराई जन्म लेकर हमें नापाक करती है। मसीह यीशु ने फरमाया, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। हरामकारियां, चोरियां, खूनरेजियां, जिनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। चलिए आइए अब आपके सामने बाइबल मुकद्दस से वो हकाइक पेश करते हैं जिनकी रोशनी में साबित होता है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास अपने बाप यानी खुदा की तरह दिलों को जांचने परखने की कुदरत और ताकत है। और देखो, लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके यानी मसीह यीशु के पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। और देखो, बाज फकीहों यानी शरा के आलिमों ने अपने दिल में कहा, ये कुफर पकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो। उस जमाने के मजहबी रहनुमा यानी फकीह और फरीसी मसीह खुदावंद के दुश्मन थे और उनकी अलूहियत का इनकार करते थे। जब मसीह यीशु ने मफलूज पर रहम की नजर की तो वो हसद की आग में जल गए और दिल ही दिल में बुरी नीयत से सोचने लगे। मगर खुदावंद ने उनके दिलों की गंदगी को पहचान लिया। खुदावंद यीशु मसीह को रियाकारों के चेहरे देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो उनके दिलों को जांच परख रहे थे कि कितना बुग़्ज़ भरा है। इसी तरह यूहन्ना रसूल मसीह यीशु का शागिर्द अपने खुदावंद के दिलों को जानने, पहचानने, परखने की कुदरत और ताकत की यूं गवाही देता है। जब वो यानी मसीह यीशु यरूशलेम में फसह के वक्त ईद में था, तो बहुत से लोग उन मोजज़ों को देखकर जो वो दिखाता था उसके नाम पर ईमान लाए। लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार न करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और इसकी हाजत न रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है। और खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में खुद फरमाता है, गुर्दों और दिलों को जांचने वाला मैं ही हूँ और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। खुदा का एक और चश्मदीद गवाह पौलुस रसूल अपने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहता है, बस जब तक खुदावंद न आए वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। वही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा।
खुदावंद यीशु मसीह न सिर्फ हमारे दिलों के अंदर झांक सकते हैं, बल्कि वो ये भी जानते हैं कि हमारा इरादा क्या है। ये कैसी अनोखी इलाही कुदरत है कि हम तो खुद नहीं जानते कि हमारा इरादा क्या है, क्योंकि हम अच्छा काम करने का सोचते हैं तो बहुत ही बुरा हो जाता है। पौलुस रसूल कहता है, गरज मैं ऐसी शरीयत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है। लिहाजा खुदावंद खुदा हमारे दिलों को भी जानता है और हमारे इरादे से भी वाकिफ है। वो जानता है कि जो हमारे दिल में भरा है वही हमारे मुंह पर भी आता है। जैसा कि हमने पहले कहा कि मसीह के जमाने के मजहबी रहनुमा फकीह और फरीसी रियाकार और मुनाफिक थे। मसीह यीशु जब भी कोई इलाही मौजज़ा दिखाते तो वो जल कर कोयला हो जाते, क्योंकि वो अपनी तालीम व कलाम और फेलो अमल से उनकी रियाकारी को बेनकाब करते थे। ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। एक और मौके पर मसीह खुदावंद ने रियाकार दीनी रहनुमाओं के मुनाफिकत से पर्दा उठाते हुए कहा, तुम वो हो कि आदमियों के सामने अपने आप को रास्तबाज ठहराते हो, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है, क्योंकि जो चीज आदमियों की नजर में आली कद्र है वो खुदा के नजदीक मकरूह है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर खुदा हमारे दिलों को जानता पहचानता है तो वही दिलों को हर बुरे ख्याल और मकरूह चीज से पाक भी कर सकता है। हाँ, बशर्ते हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं ताकि वो हमारे दिलों में सकूनत करे और हम उसकी मोहब्बत में कायम रहें। और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। हमारा खुदावंद ऐसा लामहदूद खुदा है जो हमारे दिलों को अपने पाक खून से धोकर हमें अपनी सारी मामूरी तक मामूर करने की कुदरत और ताकत रखता है। बेशक खुदा लामहदूद खुदा है। जी हाँ, खुदा लामहदूद खुदा है और खुदा की यही वो खसूसियत है जिसका हम अपने अगले प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। जरूर सुनिएगा।